اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی لیلا سے شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینے چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، خلیفۃ المسلمین، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خالد کی معزولی، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں ہے کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے۔ وہ دراصل انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں عمر، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینے بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں کے بعد مدینے پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا، سو خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ طبری اور ہیکل کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اس سے نکاح کر لے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کروا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینے میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد ہی موزوں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً بطح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 عیسوی شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری مارکا ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمان میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمان کو لوگ حدیقۃ الموت کہنے لگے۔
आज तक उसे हदीक़तुल मौत कहा जाता है। उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने में थे। उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस शिकायत पर जवाब तलबी के लिए मदीने बुलाया था कि उन्होंने मालिक बिन नवैरा को कत्ल करवा के उसकी बीवी लैला के साथ शादी कर ली। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन हालात को देखते हुए जिनमें इस्लाम घिर गया था, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में फैसला दिया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को वापस बताह जाने और यमामा के मुसलमा कज़्ज़ाब के फितने को खत्म करने का हुक्म दिया था। मुसलमा कज़्ज़ाब के मुतालिक बताया जा चुका है कि उसने नबूवत का दावा कर रखा था। उसके पैरोकारों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसका लश्कर मुसलमानों के लिए खतरा बन गया था। उस वक्त तक मुसलमान एक ताकत बन चुके थे, लेकिन मुसलमा की ताकत बढ़ती जा रही थी। ये मदीने के लिए भी खतरा था और इस्लाम के लिए भी। मदीना सल्तनत इस्लामिया का वाहिद मरकज था। खालिद का लश्कर बताह में था। वहीं उन्होंने मालिक बिन नवैरा को सजाए मौत दी और उसकी बीवी लैला के साथ शादी की थी। लैला वहीं थी। खालिद बताह को रवाना हो गए। उन्हें मालूम था कि उनके पुराने साथी सालार इक्रिमा इसी इलाके में अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं और मुसलमा के खिलाफ मदद को पहुंचेंगे। इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु उन 11 सालारों में से थे जिन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ इलाकों में मुर्तद और बागी कबाइल की सरकूबी के लिए भेजा था। दूसरे कबीले उतने ताकतवर नहीं थे जितना मुसलमा का कबीला बनु हनीफा था, इसलिए उस इलाके में इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा गया। उनके पीछे पीछे एक और सालार शुराहबील बिन हसना को भेज दिया गया। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु को ये हुक्म दिया कि वो इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को मदद दें। इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु यमामा की तरफ जा रहे थे। ये 2-2.5 महीने पहले की बात है। उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु तुलैहा से नबरदाज़मा थे। उन्होंने तुलैहा को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। ये खबर इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंची तो वो जोश में आ गए। उन्होंने अभी किसी कबीले के खिलाफ जंगी कार्रवाई नहीं की थी। कुछ दिनों के बाद इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर मिली कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सलमा के ताकतवर लश्कर को शिकस्त दी है। मौरिख लिखते हैं कि इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु पर इंसानी फितरत की एक कमजोरी गालिब आ गई। उन्होंने अपने साथी सालारों से कहा कि खालिद फतह पर फतह हासिल करते जा रहे हैं और उन्हें अभी लड़ने का मौका भी नहीं मिला। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले के साथी और एक जैसे जंगजू और मैदान जंग के एक जैसे कायद थे। इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मातहत सालारों से कहा, क्यों ना हम एक ऐसी फतह हासिल करें जिसके सामने खालिद की तमाम फतूहात की अहमियत खत्म हो जाए। मुझे इत्तला मिल चुकी है कि शुराहबील बिन हसना हमारी मदद को आ रहा है। मालूम नहीं कि वो कब पहुंचे। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैं मुसलमा पर हमला करूंगा। मुसलमा मामूली अक्लो जहानत का आदमी नहीं था। उसे मालूम था कि मुसलमान उसकी नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर रहे और किसी भी रोज इस्लामी लश्कर उस पर हमला कर देगा। उसने अपने इलाके के दिफा का बंदोबस्त कर रखा था, जिसमें देखभाल और जासूसी का इंतजाम भी शामिल था। इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु सोचे समझे बगैर बढ़ते गए और यमामा के करीब पहुंच गए। वो चूंकि जज्बात से मगलूब होकर जा रहे थे, इसलिए एहतियात न कर सके कि दुश्मन देख रहा होगा। उन्हें मुसलमा के जासूसों ने देख लिया और मुसलमा को इत्तला दी। एक और इलाके में जहां ऊंचे टीले और टेकरियां थीं, इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलमा के कुछ आदमी दिखाई थी। इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन पर हमला कर दिया, मगर ये मुसलमा का बिछाया हुआ जाल था। मुसलमा ने वहां अच्छा खासा लश्कर छुपा रखा था, जिसने दाएं बाएं से इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर पर हमला कर दिया। इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु इस गैर मुतवक्के सूरत हाल में संभल न सके। मुसलमा के लश्कर ने उन्हें संभलने ही न दिया। इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ नामी गिरामी और तजुर्बाकार सालार और कमांडार थे, लेकिन मैदान दुश्मन के हाथ में था। उसने मुसलमानों की कोई चाल कामयाब न होने दी। इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा। इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी इस शिकस्त को छुपा नहीं सकते थे। छुपा लेते तो लश्कर में से कोई मदीना इत्तला भेज देता। चुनाचे इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफतुल मुस्लिमीन को लिख भेजा कि उन पर क्या गुजरी है। खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को वाज़ेह हुक्म दिया था कि शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतजार करें और अकेले मुसलमा के सामने न जाएं। मगर इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जल्दबाजी से काम लिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को जो तहरीरी पैगाम भेजा था, उसमें गुस्से का इजहार इस तरह किया था कि इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को इब्ने अबू जहल लिखने के बजाय इब्ने उम्मे इक्रिमा लिखा।
ये अरबों में रिवाज था कि किसी की तौहीन मकसूद होती तो उसके बाप के नाम की बजाय उसे उसकी माँ से मंसूब करते। खलीफतुल मुस्लिमीन ने लिखा, ए इब्ने उम्मे इक्रिमा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मदीने आओ। तुम आए तो यहाँ के लोगों में मायूसी फैलाओगे। तुम मदीना से दूर रहो। तुम अब यमामा का इलाका छोड़ दो और हुज़ैफा के साथ जा मिलो और अहले अमान से लड़ो। वहाँ से फारिग होकर अरिफजा की मदद के लिए महरा चले जाओ। उसके बाद यमन जाकर महाजिर बिन उमैया से जा मिलना। जब तक तुम सालारी के मेयार पर पूरे नहीं उतरते मुझे अपनी सूरत न दिखाना। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुराहबील को पैगाम भेजा कि वो जहाँ हैं वहीं रहें और जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो अपना लश्कर उनके साथ करके खुद उनके मातहत हो जाएं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दिया गया था कि शुराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर भी उन्हें मिल रहा है। वो खुश हुए कि अब वो मुसलमा का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकेंगे। उन्हें तवक्को थी कि शुराहबील का लश्कर ताज़ादम होगा, मगर ये लश्कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला तो वो ताज़ादम नहीं था। उसमें कई मुजाहिदीन जख्मी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या हुआ शुराहबील? शुराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नदामत के सिवा मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन की हुक्मदूली की है। मेरे लिए हुक्म था कि इक्रिमा को मदद दूं, मगर मेरे पहुंचने से पहले इक्रिमा मुसलमा के लश्कर से टक्कर लेकर पसपा हो चुका था। ये एक खत था जिसने मुझ पर भी गलबा पा लिया। ये एक फतह तुम्हारे हिसाब में लिखी जाए। बारीक बीन और दूरंदेश खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तंजिया लहजे में शुराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब पूरा करते हुए कहा, अकेले पत्थर की कोई ताकत नहीं होती शुराहबील। पत्थर मिलकर चट्टान बना करते हैं। फिर इस चट्टान से जो टकराता है वो दूसरी बार टकराने के लिए जिंदा नहीं रहता। खुद गर्जी और जाती मफाद का अंजाम देख लिया तुमने। इक्रिमा जैसा तजुर्बाकार सालार पिट कर जलील हो चुका है। मैं तुम पर कर्म करता हूँ कि खलीफा को तुम्हारी हिमाकत की खबर नहीं होने दूंगा। शुराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी गलत हरकत की थी। उन्होंने भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बाजी ले जाने के लिए रास्ते में मुसलमा के लश्कर से टक्कर ली और पसपा होना पड़ा। मुसलमा कज़्ज़ाब दरबार लगाए बैठा था। ठिगने कद वाला ये बदसूरत इंसान मुकम्मल नबी बन चुका था। उसका कबीला बनु हनीफा तो उसे नबी मान ही चुका था। दूसरे कबीले के लोग जौक दर जौक उसकी बैत के लिए आते और उसकी एक झलक देखने को बेताब रहते। लोगों ने उसकी कुव्वत और करामात देख ली थी। अब उसके पैरोकारों ने दो मौजज़े और देख लिए थे। उन्होंने मुसलमानों के दो नामवर सालारों को जरा जरा सी देर में मैदान से भगा दिया। मजहबी और नजरियाती तौर पर मुसलमान रेशम की तरह नरम थे, लेकिन मैदान जंग में वो फौलाद से ज्यादा सख्त और बिजलियों की तरह कहर बन जाते थे। जंगी लिहाज से मुसलमान दहशत बन गए थे। इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु और शुराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी गलती और कजफहमी से शिकस्त खाई, लेकिन बनु हनीफा ने उन्हें अपने कज़्ज़ाब नबी के मौजज़ों और करामात के खाते में लिख दिया। वो कहता था कि मुसलमानों को मुसलमा के सिवा कौन शिकस्त दे सकता है। मुसलमा ने अपने पास बैठे हुए अपने दस्ते रास्त निहारुन रिजाल से कहा, रिजाल, अब हमें मदीना की तरफ कूच की तैयारी करनी चाहिए। मुसलमानों में अब वो दमखम नहीं रहा। रिजाल वो शख्स था जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तले बैठकर कुरान पढ़ा और मजहब पर उबूर हासिल किया था और उसे मुबल्लिग बनाकर मुसलमा के इलाके में भेजा गया था, मगर उस पर मुसलमा का जादू चल गया था। उसने मुसलमा की नबूवत का प्रचार शुरू कर दिया। आयात कुरानी को तोड़ मोड़ कर उसने उन लोगों को भी मुसलमा का पैरोकार बना दिया जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। मुसलमा ने उसे अपना मोतमिद खास बना लिया था। ये शराब और निस्वानी हुस्न का जादू था। खुद मुसलमा, जिसकी शक्ल सूरत मकरूह सी थी और कद मज़का खेज हद तक ठिगना था, औरतों में ज्यादा मकबूल था। मौरिख लिखते हैं कि औरतों के लिए उसमें एक मखसूस कशिश थी। सजा जैसी औरत जो क्लोपेट्रा की तरह जंगी कुव्वत लेकर मुसलमा को तहतीख करने आई थी, सिर्फ एक मुलाकात में उसकी बीवी बन गई। ये मुसलमा की जिस्मानी ताकत और मकनातीसियत थी। अब तो वो बहुत बड़ी जंगी ताकत बन गया था। इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु और शुराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु को पसपा करके उसके अपने और उसके लश्कर के हौसले बढ़ गए थे। वो अब मदीने पर चढ़ाई की बातें कर रहा था। वो दरबार में बैठा रिजाल से कह रहा था कि मदीने की तरफ कूच की तैयारी करनी चाहिए। रिजाल कुछ कहने भी नहीं पाया था कि मुसलमा को इत्तला दी गई कि एक जासूस आया है। मुसलमा ने उसे फौरन बुला लिया। जासूस ने कहा, मुसलमानों का लश्कर आ रहा है, तादाद 10 और 15 हजार के दरमियान है। मुसलमा ने पूछा, तुमने जब देखा ये लश्कर कहाँ था? जासूस ने कहा, वादिये हनीफा से कुछ दूर, अब और आगे आ चुका होगा। मुसलमा ने रौनत से कहा, इन बदबख्तों को मौत वादिये हनीफा में ले आई है। इन्हें मालूम नहीं कि इनका 10-15 हजार का लश्कर मेरे 40 हजार शेरों के हाथों चीरा फाड़ा जाएगा। वो उठ खड़ा हुआ। तमाम दरबारी एहतराम के लिए उठे।
वो रिजाल को साथ लेकर दरबार से निकल गया। उसने अपना घोड़ा तैयार करवाया, रिजाल को साथ लिया और दोनों घोड़े उन्हें यमामा से दूर ले गए। वो वादी हनीफा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मुसलमा ने हारून रिजाल से कहा, इस वादी से वो जिंदा नहीं निकल सकेंगे, मेरे इस फंदे से वो वाकिफ नहीं। रिजाल ने कह लगाया और कहा, आज इस्लाम वादी हनीफा में दफन हो जाएगा। वो आधा रास्ता तय कर चुके थे कि आगे से एक घुड़सवार घोड़ा सरपट दौड़ाता आ रहा था। मुसलमा को देखकर वो रुक गया। घुड़सवार ने हाँफती हुई आवाज में कहा, या नबी, मुजा बिन मुरारा को मुसलमानों ने कैद कर लिया है। मुसलमा ने हैरत से कहा, मुजा को? रिजाल ने डरी हुई सी आवाज में कहा, मुजा को मुसलमानों ने? मुजा की टक्कर का हमारे पास और कोई सालार नहीं। मुसलमा ने कहा, मुजा का कैद हो जाना हमारे लिए अच्छा शगुन नहीं। मुजा बिन मुरारा मुसलमा का बड़ा ही काबिल और दलेर सालार था। वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता जुलता था। मौरखों ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में लड़ने और जंगी चालें चलने की अहलियत सिर्फ मुजा में थी। मुजा मुसलमानों के हाथों इस तरह चढ़ गया था कि उसके करीबी रिश्तेदार को बनी आमिर और बनी तमीम के कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। मुजा ने मुसलमा से इजाजत ली थी कि वो लश्कर के 40 सवार साथ ले जाकर अपने रिश्तेदार के कत्ल का इंतकाम ले ले। मुसलमा अपने इतने काबिल सालार को मायूस नहीं कर सकता था। उसने उसे इजाजत दे दी। मुजा अपने दुश्मन की बस्ती में आ गया और इंतकाम लेकर वापस आ रहा था। उसे मालूम नहीं था कि जिस इलाके को वो महफूज समझता था वो अब महफूज नहीं। उसने अपने सवारों को एक जगह आराम के लिए रोक लिया। वो सब अपना फर्ज कामयाबी से पूरा कर रहे थे। घोड़ों की जीने उतार कर वो लेट गए और गहरी नींद सो गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर उसी तरफ आ रहा था। अल सुबह उस लश्कर का हिरावल दस्ता वहां पहुंचा जहां मुजा अपने 40 सवारों के साथ गहरी नींद सोया हुआ था। उन सबको मुजाहिदीन ने जगाया, उनसे हथियार और घोड़े ले लिए और उन्हें हिरासत में लेकर पीछे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम नहीं था कि मुजा मुसलमा का बड़ा कीमती सालार है। वो उसे भी महज सवार या सिपाही समझ रहे थे। उन्होंने दरअसल बड़ा मोटा शिकार पकड़ा था। उन्होंने ये तो बता दिया कि वो मुसलमा की फौज के आदमी हैं, लेकिन मुजा का रुतबा जाहिर न होने दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा, क्या तुम हमारे मुकाबले के लिए आए थे? एक ने जवाब दिया, नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं था कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। हम बनी आमिर और बनी तमीम से अपने एक खून का बदला लेने गए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने मान लिया, मैं तुम्हारी जान बख्शी कर सकता हूँ। अब मेरे इस सवाल का जवाब दो कि तुम किसे अल्लाह का सच्चा रसूल मानते हो और किस पर ईमान रखते हो। एक सवार ने जवाब दिया, बेशक मुसलमा अल्लाह का सच्चा रसूल है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, तुम मेरी तौहीन कर देते तो मैं तुम्हें बख्श देता। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को मैं किस तरह बर्दाश्त करूं? मुजा ने कहा, तुम अपने रसूल को मानो, हम अपने नबी को मानते हैं। असल बात भी यही है कि मुसलमा रिसालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराबर का हिस्सेदार है। सवारों ने कहा, हम सब का अकीदा यही है, एक नबी तुम में से है, एक नबी हम में से है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार खींची और एक ही वार से एक सवार का सर उड़ा दिया और हुक्म दिया कि सबको कत्ल कर डालो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के आदमी आगे बढ़े और मुजा को पकड़कर उसका सर काटने के लिए झुका दिया। उसे कत्ल करने वाले की तलवार हवा में बुलंद हुई। कैदी सवारों में से एक, जिसका नाम सारिया बिन आमिर था, चिल्लाया, हाथ रोक लो, इस आदमी को जिंदा रहने दो, ये तुम्हारे काम आ सकता है। तब इंकिशाफ हुआ कि मुजा बनु हनीफा के सरदारों में से है, लेकिन ये फिर भी न बताया गया कि ये सालार भी है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दूर अंदेश थे। किसी कबीले का सरदार बड़ा कीमती यरगमाल होता है, उसे किसी न किसी मौके पर इस्तेमाल किया जा सकता है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मुजा के पाँव में बेड़ियां डलवाकर उसे अपने खेमे में ले गए और उसे अपनी बीवी लैला के हवाले कर दिया। बाकी सबको कत्ल करवा दिया। मुसलमा के लिए मुजा की गिरफ्तारी कोई मामूली नुकसान न था, लेकिन वादी हनीफा वो फंदा था जो इस नुकसान को पूरा कर सकता था। इसके अलावा मुसलमा के लश्कर की तादाद 40,000 थी और मुसलमानों की तादाद 13,000। मुसलमा के पास घुड़सवार और शुतर सवार दस्ते ज्यादा थे। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।